Okay, so welcome, my dear friends. Now we are going to start with the another unit, which is basically our cardiovascular system. The cardiovascular system is majorly consists of blood, heart, heart and blood vessels, along with our lymphatic system. So, we are going to start with our cardiovascular system with the blood. The major component of our cardiovascular system is our blood, because the other secondary, or we can say the primary cardiovascular elements like heart, blood vessels are directly related to the blood. So, we are going to start with the blood. So, let's have a quick introduction about our blood. Okay, blood is a type of fluid connective tissue that consists of plasma, blood cells and platelets. हमने जो हमारे जब कनेक्टिव टिश्यूज डिस्कस कर रहे थे, दैट वी डिस्कस दैट ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. दैट ब्लड इज अ connective tissue which consists of plasma, blood cells, okay, and the platelets. Platelets is also a type of blood cells. It circulates throughout our body. ये जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है with the help of our blood vessels, and it is pumped by our heart. जो blood जो है उसकी pumping जो है हमारा heart करता है, and it transported to all the body parts with the help of our blood vessels. It make up of the overall 8% of our body weight. यानी कि जो हमारी बॉडी में टोटल ब्लड है, इट कंसिस्ट ऑफ 8% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट. और एक एवरेज ह्यूमन के अंदर अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है. ओके, जब हमारी हार्ट बीट है, ओके, आवर हार्ट बीट्स पंप अराउंड 10,000 टाइम्स एवरी डे. 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, तो 1 लाख टाइम्स जो हमारा ब्लड है, ठीक है, उसमें सॉरी जो हमारी हार्ट है वो बीट करता है. और हर बीट पे, और ये जो टोटल बीट है उसमें क्या है, 14,000 लीटर ऑफ पंप जो है, जो हमारा क्या है, ब्लड पंप होता है. ओके, तो जस्ट स्टडी ऑफ आवर ब्लड. ओके, जो हमारी ब्लड है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, दैट स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज hematology. Okay, so the study of our blood, its associated component is basically known as our hematology. तो अगर हम बात करें ब्लड है क्या, ब्लड इज नथिंग बट अ connective tissue which consists of our plasma and blood vessels. It is circulating throughout our body with the help of our blood vessels, and heart pumps this blood. टोटल कितनी है हमारी बॉडी के अंदर, दैट 5 to 6 लीटर इज आवर ब्लड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ. एक ये टर्म आई है फ्लूइड ऑफ लाइफ, बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. यानी कि जो ऑक्सीजन है लंग्स से लेकर ये पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है, एंड इट आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स को ट्रांसफर करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर blood. A brief introduction about our blood. Blood is a type of connective tissue which is a liquid in nature, and it carries oxygen and carbon dioxide. The blood carrying oxygen is called as oxygenated blood, and the blood carrying carbon dioxide is known as our deoxygenated blood. You have to learn these two terminologies, what is oxygenated blood and what is deoxygenated blood. So, what are the major functions of our blood? Blood plays three important roles. Very first is the transportation. It transports different materials. Firstly, it transport oxygen to cells from lung. यानी कि जो ऑक्सीजन है डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड करता है
when it take oxygen from the lungs and transported it to the different cells. Similarly, it also transport carbon dioxide in the vice versa condition कि जो different different cells से है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और lungs तक पहुंचाता है. Okay, third one, it transport nutrients from digestive organs to cells. यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे दैट आवर स्टमक इंटेस्टाइन जो ब्लड है उनसे न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करता है एंड आफ्टर एब्सॉर्प्शन इट ट्रांसपोर्ट these nutrients to the different cells. Fourth one is our it transport hormones and enzymes to the target tissues. हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे हार्मोन्स और हमारे अलग अलग जगह पे एंजाइम्स बनते हैं. हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है. हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड है, इंसुलिन है, एक जगह पे बन रही है और किसी दूसरे ऑर्गन पे दूसरे सेल पे जाके जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. सो दे आर ट्रांसपोर्टेड from target from one cell to another with the help of our blood. So these are the four major function as the transportation of blood. तो blood जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स में मदद करता है. Okay, so next is the major function of our blood is the regulation. It helps in the regulation of pH of our body. जो हमारी बॉडी की pH है, it is around 7.4 is the normal pH of our body and the same pH of our blood. यानी कि जो हमारी blood की pH है वही same जो है हमारी बॉडी की पीएच है और ये मेंटेन कौन करता है हमारा ब्लड. हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे करता है. इट आल्सो रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर कि ये क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है ना, जब ब्लड है जब क्या कहते हैं हमें हीट चाहिए होती है तो ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाती हैं और जब हमें ठंड चाहिए होती है तो क्या ये हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्टैक्ट हो जाती है. तो इस तरीके से जो ब्लड है हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करता है. Also, it regulates the water content and it's regulate water content with the help of osmotic pressure. Okay, ये एक important term है कि osmotic pressure से जो है हमारा जो blood है water content को regulate करता है. Okay, the next one is protection. हमारी body जो है उसकी blood loss को कौन है हमारा ब्लड ही प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ब्लड कंटेन क्लोटिंग फैक्टर्स विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट द एक्सेसिव ब्लड लॉस. कि ब्लड जो है क्लोट बना लेता है तो एक्सेस ब्लड लॉस को बचाता है. सेकेंडली इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस. हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं. दीज कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड अदर different types of cells which basically protects our body from the pathogens. ये हम डिस्कस करेंगे कि how that our blood protects our body from the pathogens. But till then you have to just remember all these functions. We discussed the 9 different functions of our blood, which is the transportation, regulation and protection. Okay, so now let's move to the general characteristic of our blood, or we can say the physical characteristic of our blood. So the physical characteristic consists of color. The color of our blood is basically scarlet red to purple red. And you know, the red color of our blood is due to the presence of red blood cells, and these red blood cells contains our hemoglobin, which imparts the red color to our blood. सेकेंडली वॉल्यूम कितना है हमने अभी डिस्कस करा था कि न्यूबॉर्न बेबी में तो कम होता है, इट अराउंड 450 milliliter, but in a normal adult it is around 5 to 6 liters. हमारी पूरी बॉडी के अंदर 5 to 6 liters of blood होता है जो continuously हार्ट की मदद से पंप होता रहता है and it transported to other cells and our other organs with the help of blood vessels. Okay,
pH it is slightly alkaline, ओके न्यूट्रल नहीं है, अराउंड 7.4 जो है हमारे ब्लड की pH होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ओके तो विस्कोसिटी इट इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, ओके वाटर से जो है ये 5% मोर विस्कस है। इसके अंदर जो है अराउंड 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। टेम्परेचर क्या होता है हमारे ब्लड का, वही जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, इट इज अराउंड 37.5 और वी कैन से 38 डिग्री सेल्सियस। सो we have just discussed the function and the physical characteristic of our blood. Let's continue with the composition of our blood, which is the major topic. That our blood consists of two major components. First is our blood plasma and second is our formed elements, or we can call them as our cells. The blood plasma is nothing but the watery लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ओके यानी कि जो वाटर से है, यानी कि जो लिक्विड हमारी ब्लड के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स है। अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाके देखें कनेक्टिव टिश्यूज वाले टाइम पे, कि हमने वहां पे डिस्कस करा था कि जो हमारे अपना जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। तो ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इट इज अ लिक्विड विच इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसका 55% क्या है हमारा ब्लड प्लाज्मा। यानी कि अगर 5 लीटर किसी ह्यूमन के अंदर टोटल ब्लड है, द टोटल ब्लड के अंदर जो हमारा 2.75 लीटर जो है वो क्या है हमारा ब्लड प्लाज्मा। एंड द रिमेनिंग 45% कंसिस्ट ऑफ आवर सेल्स एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। नाउ जो हमारे सेल्स हैं बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आवर प्लेटलेट्स। We are discussing them in detail as well. Okay, so our blood consists of two major components. Number one is our blood plasma, which is a watery, or we can say liquid extracellular matrix. Okay, and it also consists of our 55%. The second one is our blood cells, or we can say our formed element. So let's firstly discuss with the blood plasma, because it contains 55% of our total blood volume. Let's start with our ब्लड प्लाज्मा। बिफोर दैट ये देखिए हमने एक फिगर, दो फिगर हमने बेसिकली आगे शो करी है कि देखिए दिस इज आवर होल ब्लड, इट कंसिस्ट ऑफ आवर प्लाज्मा एंड आवर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा फर्दर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग। ओके, प्रोटीन्स होती हैं, गैसेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है बेसिकली हमारे 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड इराइथ्रोसाइट्स। Erythrocytes are known as our red blood cells. Leukocytes are known as our white blood cells. And these white blood cells are further of 5 different types. Okay, granulocytes and agranulocytes. We are going to discuss them about all of them in a certain detail. कुछ को हम ब्रीफ में और कुछ को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके लुक, ये देखिए हमारा ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो 92% क्या है अदर टिश्यूज के फ्लूइड प्रेजेंट है, एंड 8% हमारी बॉडी के अंदर क्या है ब्लड प्रेजेंट है। एंड दिस ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट इज आवर प्लाज्मा एंड सेकंड इज आवर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, एंड आवर ब्लड जो हमारी ब्लड की सेल्स है, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स, ये भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये 2 फिगर्स आपको जो है प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बताएंगी। व्हाट एक्चुअली आवर ब्लड इज, देखिए अगर इस फिगर में देखें तो टोटल बॉडी वेट का 8% क्या है हमारा ब्लड। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो उसके 2 कंपोनेंट्स हमें विजिबल होंगे, फर्स्ट इज आवर प्लाज्मा एंड सेकंड इज आवर फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ different materials such as our water, plasma proteins, okay, and then we have our formed elements which consist of our red blood cells, white blood cells and platelets. So firstly
we are going to discuss about our blood plasma because it consists of 55% of our total blood volume. Okay, it plays a very important role in our blood. Just have a quick review about our blood plasma. Plasma is the straw colored liquid component, यानी कि रेड कलर का प्लाज्मा नहीं होता, दैट प्लाज्मा इज अवर स्ट्रॉ कलर. ये देखिए, अगर मैं बैक वाली फिगर आपको दिखाऊं तो उसमें ये देखिए क्लियरली विजिबल था कि जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो रेड कलर है वो नीचे की तरफ आ जाता है और एक स्ट्रॉ कलर यानी कि ट्रांसपेरेंट सा जो कलर है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा. सो प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड component of the blood, यानी कि जो लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा. इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर, यानी कि सारा का सारा वाटर है, और बाकी जो 8% है, 8 to 9% इज द सॉलिड. और ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है. ओके, अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा से हम कोएगुलेशन फैक्टर को रिमूव कर दें, ओके, तो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसा एक फ्लूइड बचेगा जिसको हम कहते हैं हमारा सीरम. तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा, हाउ प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम आवर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो हम ये लिखेंगे कि दैट प्लाज्मा कंटेन्स आवर कोएगुलेशन फैक्टर्स बट coagulation factors are absent in our interstitial fluid. तो ये मेजर डिफरेंस है. ओके, अगर हम अपने प्लाज्मा से प्लाज्मा से अगर कोएगुलेशन फैक्टर को रिमूव कर देंगे, सो इट इज नोन एज आवर सीरम. ओके, सो this is about our plasma. Let's discuss about the different composition of our plasma. Plasma consists of 90 to 92% water, so major component, and the other components that consist of 8% of our total plasma. It is our plasma proteins, our minerals, or we can call them our electrolytes, our nutrients, waste products, hormones, enzymes and gases. यानी कि जितने भी मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड के थ्रू, these all are present in our blood plasma. Okay, we are going to discuss them in a certain detail. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर. वाटर इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ आवर ब्लड. इट बेसिकली एक्ट एज अ सॉल्वेंट और सबसेंडिंग सब्सटेंस फॉर अदर मटेरियल्स ऑफ द ब्लड. यानी कि ब्लड के अंदर हमारे जो प्लाज्मा है, अभी हमने डिस्कस करा, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हम बात करें हमारे सेल्स हैं, वो सब किसके अंदर सस्पेंडेड है, इन अ वाटर पोर्शन. ओके, तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो हमारे ब्लड का है वो है वाटर. ओके, तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस. सो सेकेंडली वी हैव आवर प्लाज्मा प्रोटीन्स. जो टोटल 7% प्लाज्मा है हमारी बॉडी का, 8% में से जो है टोटल 7% हमारे क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर प्लाज्मा एज वेल. जो हमारी प्लाज्मा है उसके अंदर 7% जो है टोटल प्रोटीन प्रेजेंट है, और 90% क्या है, हमारा वाटर प्रेजेंट है. और ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, इट हेल्प्स इन एक्सर्टिंग द ऑस्मेटिक प्रेशर, ताकि जो है प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होती गई. ओके, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, वो जो ब्लड है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा. ओके, तो इट मे कॉज इडीमा. देयर आर मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर प्लाज्मा प्रोटीन. जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, इट कंसिस्ट ऑफ एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोजन. यानी कि अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. These proteins play a very important role. So now we are going to discuss about the function of these plasma proteins, because these plasma proteins are very much important. Firstly, they have a role in blood coagulation, यानी कि blood की clot formation में मदद करते हैं. आप आगे डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज ब्लड कोएगुलेशन, एक डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जो फिब्रिनोजन है, जो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा, या जो हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है.
सेकंड, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म्स, यानी कि जो हमारे ग्लोबुलिन्स हैं दे विल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन्स विच एक्ट एज आवर एंटीबॉडीज। ओके, थर्ड वन, रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, यानी कि जो एल्बुमिन है, अल्फा ग्लोबुलिन है, ये क्या है, हार्मोन्स, एंजाइम्स और ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। फोर्थ वन इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि जो एल्बुमिन है, प्रोटीन है, बहुत बड़ी चेन के जो हमारी केमिकल्स हैं, तो दे मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ आवर ब्लड। The viscosity of our blood is 5 times viscosity of water, यानी कि वाटर से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा है। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ ईएसआर, यानी कि ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन क्या है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की जो सेडिमेंटेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज ईएसआर। एंड सिक्स्थ, these proteins are also act as a reservoir proteins, ताकि जो हमारी बॉडी में इनएडुकेट प्रोटीन की सप्लाई होती है तो ये जो प्रोटीन्स है हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाए। सो दीज आर दी 6 मेजर फंक्शन ऑफ आवर प्लाज्मा प्रोटीन्स। फर्स्ट वन, दैट fibrinogen help in the coagulation, alpha globulin or we can say globulin help in the transportation and defense mechanism, albumin help in the transportation and maintaining the viscosity, and then globulin, fibrinogen are also help in the regulation of erythrocyte sedimentation rate, which is ESR, and then all these three act as a reservoir proteins. So these are the functions of our plasma proteins. Next, we are going to discuss about the third element present in our plasma protein, which is our minerals and salt. There are different electrolytes: sodium, potassium, iodine, calcium, magnesium, phosphate. These all are the minerals or the salts, or we can say electrolytes that are present in our body. These electrolytes help in maintaining the pH of our body, यानी कि electrolytes की मदद से जो है हमारी blood की pH जो 7.4 pH होती है वो maintain होती है। ओके, देखिए लिखा हुआ हमने maintenance of pH, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, these electrolytes help in the cell formation, muscular contraction and nerve impulse। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स में ये हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज ऑल मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन आवर plasma, blood plasma, and they are transported in our whole body through the blood plasma or the blood. So these third are the electrolytes, which are the major component of our blood plasma. Then we have our nutrients, which includes our amino acids, glucose, fatty acids, glycerol and vitamins. अमाइनो एसिड्स जो है हमें फूड इंजेक्शन के टाइम पे हमें जो है प्रोटीन से मिलते हैं, ग्लूकोज जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। ओके, आपने अभी फंक्शन में डिस्कस करा था कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ब्लड है, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू द अदर सेल्स। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड प्लाज्मा। फिफ्थ और द मेजर कंपोनेंट, आल्सो मेजर कंपोनेंट इज द गैसेस। हमने मेजरली डिस्कस करा था कि जो ब्लड का फंक्शन है वो क्या है, इट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से लेकर हमारे पूरे बॉडी पे सर्कुलेट करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, बॉडी से लेके लंग्स पे ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इज द मेजर फंक्शन ऑफ आवर blood, and these gases are also present in our plasma, or we can in the our blood plasma. Okay, then we have our hormones and enzymes. These hormones and enzymes are also present in our प्लाज्मा। ये जो हार्मोन्स एंजाइम्स है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन से सिंथेसाइज होते हैं, लीवर से जो हमारे एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, और ये जो है ब्लड को एज अ व्हीकल यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, सिक्स्थ सॉरी सेवंथ जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स।
यानी कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, ओके, कोई भी मेटाबॉलिज्म है, अगर मैं एग्जांपल लूं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ओके, ये क्या है, किडनी से ब्लड जो लेता है उन्हें, ओके, जो स्पेसिफिक लेता है और किडनी तक ले जाता है, एंड एट द किडनी जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं, ओके। सो इट आल्सो कंटेन, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, इट आल्सो कंटेन्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। 55% ऑफ ब्लड जो है हमारा ब्लड प्लाज्मा से बना हुआ है, एंड दिस ब्लड प्लाज्मा इज अ लिक्विड मटेरियल। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, plasma proteins, different types of electrolytes, nutrients, gases, and hormones, enzymes, and waste products. So this is about our first component of blood, which is our blood plasma. Now we are going to discuss about the second major component of our whole blood, which is our formed elements. It consists of cells, यानी कि जो cells हैं हमारे blood के, these are the second part, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारे क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अवर इराइथ्रोसाइट्स, जिनको हम बोलते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, या एब्रीवेटेड टर्म में आरबीसीज। दूसरे होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स, या हम बात करें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी। थर्ड वन इज आवर थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारी प्लेटलेट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, विच इज आवर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल आल्सो नोन एज आवर, ये देखिए, इराइथ्रोसाइट्स। ओके, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। यानी कि तीन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स। हर सेकंड 2.4 मिलियन न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं। कि हम बात करें कि 2/3, या हम बात करें अ क्वार्टर, यानी कि 1/4 ऑफ आवर टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड आरबीसी प्रेजेंट है। यानी कि अगर 5 लीटर ब्लड है तो उसका 1/4, यानी कि जो हमारा 1.2 लीटर, यानी कि 1.2 लीटर जो ब्लड है वो क्या है, हमारा रेड ब्लड सेल से बना हुआ है। और ये रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। द रेड कलर ऑफ आवर red blood cells is due to the presence of hemoglobin. So let's start with the general characteristics. ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, these are biconcave disc cells. Okay, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये these are biconcave disc and these are flexible. ये देखिए कुछ इस तरीके से बाइकनकेव डिस्क की तरह हमारे सेल के दिखते हैं, और इनका डायमीटर कितना होता है, 6.2 to 8.2 माइक्रोग्राम। ओके, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, these are absent of nucleus. ओके, और नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज की वैल्यू कितनी होती है, इन ह्यूमन देयर आर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड इन द फीमेल देयर आर 4.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, 5 मिलियंस और 4.5 मिलियंस हम इनको जो ऐसे क्लासिफाई करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर red blood cells. Third, what are the major functions? जो हमारे red blood cells हैं, these are majorly responsible for the transportation of oxygen to the various organs. Okay, हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जो है जिसके साथ हमारा ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस है, तो यानी कि हीमोग्लोबिन की भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। थर्ड, जो हमारी ब्लड की ग्रुपिंग है, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओके, ये भी हमारी किसकी मदद से होता है, हमारे आरबीसीज की मदद से, बिकॉज दीज आरबीसीज कैरीज ब्लड ग्रुप एंटीजन्स लाइक एंटीजन ए एंड बी। तो दीज आरबीसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एज वेल। तो तीन मेजर फंक्शन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, transportation of hemoglobin, and the determination of blood grouping. Okay, so these are the three major functions
देन वी हैव अवर लाइफ स्पैन, कि जो हमारा आरबीसी है उसकी कितनी लाइफ स्पैन होती है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आवर आरबीसी इज 120 डेज, यानी कि 3 महीने के बाद, सॉरी 4 महीने के बाद, या हम बात करें 120 दिन के बाद जो है हमारा नया आरबीसी या एक आरबीसी की डेथ हो जाती है। ओके, यानी कि 120 दिन बाद जो है नया आरबीसी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है। दे आर डिस्ट्रॉयड इन द रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम, ये जो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है उसकी मदद से ये डिस्ट्रॉय होता है। ओके, एंड द डिस्ट्रक्शन मेनली अकर इन द स्प्लीन, जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है ओके वो कहाँ होती है, हमारे स्प्लीन के अंदर। दैट्स व्हाई द स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो अगर कभी एक नंबर का क्वेश्चन आए, व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सो द स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और लाइफ स्पैन कितना है हमारे रेड ब्लड सेल्स का, इट इज अराउंड 120 days. Okay, so the lifespan is 120 days. Then we discuss the major component of our आरबीसी। जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसका एक मेजर कंपोनेंट है, वो क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारा रेड ब्लड सेल्स कंबाइन होता है। हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ ग्लोबुलिन एंड हीम, यानी कि एक जो प्रोटीन है ग्लोबुलिन, उसके साथ जो है हमारा एक स्पेसिफिक पिगमेंट हीम अटैच हो जाता है, विच फॉर्म आवर हीमोग्लोबिन। द हीमोग्लोबिन हैज द एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि उसके अंदर जो है 4 आयरन के एटम्स होते हैं ओके हीम के अंदर, which attaches with the oxygen. So the transportation of oxygen via red blood cells is due to the attachment of oxygen with the heme, or we can call the iron. Okay, heme consists of iron, heterocyclic ring के अंदर present होते हैं। इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतना पता होना चाहिए that hemoglobin consists of a protein called globulin and a pigment which is known as heme, and it is required, also required during the growth of red blood cells। हमारी जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अवर हीमोग्लोबिन, वही उसके हीमोग्लोबिन के बारे में आ गया कि ईच हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, दैट ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ओके, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो है बिल्कुल एक ब्राइट रेड कलर का होता है। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी होगा, इट कैरीज विद द हेल्प ऑफ आवर हीमोग्लोबिन। तो अगर अब हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें हीमोग्लोबिन का, ओके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर हीम ग्रुप होते हैं और एक 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं। उन 4 आयरन के साथ जो हमारे 4 ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। तो इसकी अल्फा बीटा 2 चेन होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ, यानी कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। एवरेज कंटेंट जो है हमारे ह्यूमन के अंदर कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन का, 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल होगा उतना ही ज्यादा हमारी ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन सर्कुलेट होगी। हीमोग्लोबिन हमारे 3 तरह के हैं, फिटल हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन और प्रीमिटिव हीमोग्लोबिन। जो फिटल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, 2 अल्फा और 2 गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होंगे। जो एडल्ट के अंदर है 2 अल्फा और 2 बीटा। ओके, और प्रीमिटिव के अंदर 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज अबाउट आवर hemoglobin. Hemoglobin is nothing but a protein which combines with oxygen and helps in the transportation of oxygen to the whole body. और जो हमारे रेड ब्लड सेल को, यहाँ हम बात करें हमारे पूरे ब्लड को जो रेड कलर मिलता है, द रेड कलर इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसके अंदर जो एक पिगमेंट है, हीम पिगमेंट है, उसकी मदद से क्या है, जो हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन से हमें क्या है, ब्लड को रेड कलर मिलता है।
देन वी हैव अवर इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि एक स्पेसिफिक रेट जिसको हम डिफाइन करते हैं इज द रेट एट विच आवर रेड ब्लड सेल्स सेडिमेंट इन अ पीरियड ऑफ 1 हाफ। यानी कि अगर हम नॉर्मल अपने ब्लड को थोड़े टाइम के लिए रख दें तो उसमें क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लेवल नीचे आ जाएगा। ओके, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है कितना नीचे आ सकते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, आरबीसी एंड प्लाज्मा विल सेपरेट। इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। तो अगर नॉर्मल वैल्यू क्या है 2 to 10 मिलीमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो है 2 से 10 mm तक जो है हमारा ब्लड नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, यानी कि आरबीसी नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। और वुमेन में कितने होते हैं 2 to 15 mm per hour. So this is all about our first component of our blood cell, which is red blood cells. In the next lecture we will continue with the other two types of cells, which is our white blood cells and platelets. Okay, so this is about our composition of blood. जो हमने स्टार्टिंग में अपने ब्लड की फंक्शंस, उनके क्या 3 मेजर फंक्शंस हैं वो डिस्कस करें, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करी, फिर हमने कंपोनेंट ऑफ ब्लड डिस्कस करे, जो हमारा पहला था ब्लड प्लाज्मा, दूसरा हमारे सेल फ्रैगमेंट्स या हमारे सेल्स ब्लड सेल्स। हमने जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के आगे फर्दर सब टाइप्स पढ़े कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, उन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स सब प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने डिस्कस करा हमारा सेल कंपोनेंट, 3 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हमने जो है इस लेक्चर में हमारे रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड आवर platelets. Okay.